Welcome students. In agriculture extension course हम fundamentals of rural sociology and educational psychology ये देख रहे हैं. It is your extension 111 course and now we are going to cover your syllabus as per the guidelines of 15th committee ICAR. ओके सो हमने लेक्चर फर्स्ट देखा था सोशियोलॉजी रूरल सोशियोलॉजी एंड लेक्चर सेकेंड हमने देखा था दैट इज इंडियन रूरल सोसाइटी. लेक्चर थ्री में हमने पार्ट ए कवर किया है. योर लेक्चर थ्री इज अबाउट द सोशल ग्रुप्स एंड टुडे वी विल कवर योर पार्ट बी ऑफ लेक्चर थ्री. So at Top Course, we help you to prepare for your various competitive examinations and also for your PG entrance examinations. So if you haven't subscribed to our channel yet, then do subscribe to our channel and also join us on Telegram. My name is Sharayu Deshmukh and I am teaching you extension education. So social group में हमने already social group का meaning, definition, characteristics ये cover किया है. Okay. All those students who haven't seen my previous video, then do watch it. Okay. And types of social groups में भी हमने सारे टाइप्स कवर नहीं किए हैं अभी तक. ओके वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग टाइप्स नाउ इन दिस सेशन. एंड आज ही हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कवर करेंगे, मोटिवेशन का कवर करेंगे एंड ऑल्सो रोल ऑफ सोशल ग्रुप्स इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन. So yes, types of groups में हमने nature of interaction, then on the basis of degree of organization, basis of duration, cultural interest group, reference group, then on the basis of size of the group and according to the nature of membership. इतना तो हमने cover किया है. Okay, and now we will start with according to the territorial limitation. So according to the territorial limitation, the groups are divided into three types: natural territorial group, artificial territorial group and non-territorial group. So first one is the natural territorial group. Natural territorial group में क्या होता है that the territorial limits are fixed by nature. जो भी territorial limits है वो nature ने ही fix किए हैं. Okay, these are fixed by the nature. ग्रुप फॉर्म बाय नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड बाउंड्रीज. और ये जो ग्रुप्स होते हैं ना वो कुछ सिमिलैरिटीज होती है उस जियोग्राफिकल एरिया में, वहाँ के क्लाइमेट में. सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड एंड बाउंड्रीज आर फिक्स्ड बाय जियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक सिचुएशन. फॉर एग्जांपल जब हम हमारी कंट्री की बात करते हैं तो इसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट ये सारे यहाँ पे कुछ टेरिटोरियल लिमिटेशंस है. दैट इज द नेचुरल टेरिटोरियल लिमिटेशन. नॉर्थ एंड साउथ इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ईस्ट वेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से. सो ऑल द फोर सेक्शंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके सो यहाँ पे जो बाउंड्रीज है ना वो कैसे फिक्स किए हैं बाय द क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिक सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल रीजन. Second one is the artificial territorial group. So here the territorial limits are fixed artificially by man. जो भी territorial limitation है वो किसने fix किए हैं? Man ने fix किए हैं. These are fixed artificially by man on functional basis. Example तालुका, विलेज, डिस्ट्रिक्ट. ओके सो तालुका की एक बाउंड्री है, फिर विलेजेस की बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, कंट्री बाउंड्री है. ये सारी जो बाउंड्रीज है वो आर्टिफिशियली किसने बनाई है? वो लोगों ने बनाई है. ओके द टेरिटोरियल लिमिट्स आर फिक्स्ड आर्टिफिशियली बाय मैन. So that is known as artificial territorial group. I hope that these two are clear to you. एक है natural जिसकी जो boundaries है ना territorial वो automatically nature ने ही fix की हुई है. And artificial territorial में क्या होता है जो भी boundaries है वो human beings fix करते हैं. And last one is non-territorial group. अभी non-territorial group exactly क्या है? Okay, so natural and artificial territorial limits do not play any part. यहाँ पे natural and artificial territorial limits जो है उनका कोई part नहीं होता है. Okay, और ये जो groups है वो पूरे वर्ल्ड में फंक्शन करते हैं. दे फंक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए ये जो ग्रुप्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में फंक्शन करते हैं. और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है. अभी यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल कुछ लिमिटेशन है, यहाँ पे नेचुरली लिमिटेशन है. सो नॉन टेरिटोरियल में कोई लिमिटेशन नहीं होता. ओके एंड फॉर एग्जाम्पल
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस एक्सेट्रा, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, दे वर्क इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे फंक्शन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनके लिए ये आर्टिफिशियल टेरिटोरियल लिमिट्स या फिर नेचुरल टेरिटोरियल लिमिट्स कोई मायने नहीं रखता है। Next one is according to the profession or occupation. These groups are formulated on the basis of profession or occupation. ये groups कैसे form किए हैं? On the basis of profession or occupation. हम क्या occupation करते हैं, हमारा कौन सा profession है, उसके हिसाब से ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं ऑफ द मेंबर्स लिविंग इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई टीचर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मर है, कोई इंजीनियर है। सो ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशन है, अलग अलग प्रोफेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्यूपेशन the groups are formed. For example, we have a few religion groups, then educational group है, political group है। The next is classification based on social class. अभी social class के basis पे there are two types again, horizontal group and vertical group. अभी horizontal group मतलब क्या? ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड ऑफ पर्संस फ्रॉम सेम लेवल। जो भी लोग हैं यहाँ पे वो सेम लेवल पे होते हैं, इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल ग्रुप बोलते हैं। ओके, सेम लेवल इन द सेंस क्या, जो भी इनकम है लोगों की या फिर जो भी उनका स्टेटस है सोसाइटी में, जो भी उनकी पोजीशन है इन सोसाइटी, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, सो जो भी लोग सेम लेवल के होते हैं। ओके, और तो हम उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रुप। दीज आर द ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड ऑफ पर्संस फ्रॉम सेम लेवल। नेक्स्ट इज वर्टिकल ग्रुप। अभी यहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था शायद, स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स। ओके, और अलग अलग स्ट्रेटा होते हैं, यस हमने ये डिस्कस किया है। ये अपर क्लास है, ये मिडल है, दिस इज योर लोअर क्लास। सो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटा होते हैं। सो ऐसा कोई ग्रुप जिसमें ये तीनों स्ट्रेटा के मेंबर्स आते हो, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल ग्रुप। सो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, पर्सन फ्रॉम डिफरेंट क्लास, दैट इज अपर क्लास का कोई होगा, मिडिल क्लास होगा, लोअर क्लास होगा, ये तीनों क्लास के लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। दैट इज वाई हम इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल ग्रुप कहते हैं, कि अलग अलग मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप। लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग स्ट्रेटा के लोग प्रेजेंट नहीं होते। ये जो लोग हैं इनकी जो लेवल है, मे बी इनकम लेवल हो या फिर उनकी स्टेटस इन सोसाइटी, उनकी पोजीशन हो, तो वो सबको सेम लेवल पर ही होती है, इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल ग्रुप कहते हैं। The next is on the basis of personal feeling. ओके, सो पर्सनल फीलिंग के बेसिस पे ग्रुप्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सो फर्स्ट वन इज इन ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फीलिंग टूवर्ड्स मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, जो एक वी फीलिंग होती है, पर्सन्स हैव सॉलिडारिटी, मतलब एक यूनिटी होती है लोगों में, लॉयल्टी होती है, देयर इज फ्रेंडलीनेस, पीपल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, उनमें बहुत कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, and people feel that they are a part of that group. Okay, so it is characterized by expression like we belong, we feeling, we believe, we act, or my family, my club. यहाँ पे ना लोगों को ऐसा लगता है that yes I am a part of that group, और you know this is my family, this is my club. So ये जब फीलिंग आती है तो वो एक इन ग्रुप में आती है। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखो दैट देयर इज अ सेंस ऑफ अटैचमेंट। लोग एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ इसे अटैच्ड है, इसलिए उनमें एक वी फीलिंग होती है, एक वी बिलोंग की फीलिंग होती है। नेक्स्ट इज आउट ग्रुप। अभी आउट ग्रुप में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है दैट वी डू नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। ओके, सो ग्रुप टू विच वी डू नॉट बिलोंग और नॉट विद अस, तो ऐसे ग्रुप्स को हम आउट ग्रुप कहते हैं। अ पर्सन हैव नो सेंस ऑफ लॉयल्टी। यहाँ पे क्या होता है, किसी पर्सन को उस ग्रुप के बारे में मतलब ज़्यादा फ्रेंडलीनेस नेचर नहीं होता है, या फिर ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं होती है, देयर इज़ नो कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोल सकते हैं दैट वी आर हिंदूज
दे आर मुस्लिम्स, नहीं तो फिर दे आर मुस्लिम्स, सॉरी वी आर मुस्लिम्स एंड दे आर हिंदूज, ऐसा। ओके, सो दिस इज आउट ग्रुप। हम खुद को कहाँ पे कभी उस ग्रुप का मेंबर नहीं मानते हैं। ओके, दैट ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू अस, हमें इसलिए को थोड़ा आउट ग्रुप फील होता है। Next one is classification based on the type and quality of relationship. Now based on type and quality of relationship, उस ग्रुप में जो क्वालिटी है रिलेशनशिप की वो कैसी है, इसके बेसिस पे ग्रुप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द Gemeinschaft ग्रुप and second is the Gesellschaft group. So let us see what is Gemeinschaft group. So society in which relationship is traditional or personal. Relationship कैसी होती है, ट्रेडिशनल होती है, पर्सनल होती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। ओके, सो दैट इज अ Gemeinschaft group. कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या फिर फॉर्मेलिटीज या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स इस ग्रुप में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, जो भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, तो वो लोगों को लोन देते थे सिर्फ इस बेसिस पे दैट दे नो ईच अदर। अगर वो जमींदार उन लोगों को पर्सनली उन्हें जानता है, ओके, तभी वो उन्हें लोन देते थे। सो दिस इज अ Gemeinschaft ग्रुप। यहाँ पे कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ऐसा नहीं होता है, एंड पीपल नो ईच अदर, दे हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप with each other, then they do interact with each other, so we can say that the relationship is personal, or we can also say that it is traditional. So please remember Gemeinschaft, okay, Gemeinschaft, ये वर्ड ध्यान में रखो। यहाँ पे relationships कैसी होती है, these are traditional, personal or often both, and the written contracts or documents are not present, और इसका best example है जमींदारी system. Now let us go to next type, that is the Gesellschaft group. Gesellschaft group में क्या होता है, exactly opposite to Gemeinschaft. जैसे Gemeinschaft ग्रुप में पर्सनल अटैचमेंट होता है एंड द रिलेशनशिप इज ट्रेडिशनल, थोड़ा इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होता है। तो Gesellschaft में वैसे देयर इज नो पर्सनल अटैचमेंट, ओके, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स। कोई भी जो ट्रेडिशनल राइट्स है उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, एंड लोगों में पर्सनल अटैचमेंट भी नहीं होती है एक दूसरे के साथ। इसलिए क्या होता है, कुछ क्लियरली डिफाइंड अग्रीमेंट्स हो गए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब कुछ Gesellschaft ग्रुप में होता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एसोसिएशन ऑफ होलसेल। So this was all about the types of group. I hope that this is clear to you. Now let us move on to the next, that is factors affecting the formation of group. ऐसे कौन से factors है which affect the formation of a group? So first one is the homogeneity of a group. So homogeneity, homo means same. कुछ तो सिमिलर होना चाहिए तभी एक ग्रुप फॉर्म होगा। ओके, कोहेसिवनेस मीन्स ऑल्सो सिमिलैरिटी। सो इंटरेस्ट सेम होगा, नहीं तो वैल्यूज सेम होनी चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी सिमिलर, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर शुड बी सेम, कैसे बिहेव करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, वैल्यूज सेम होने चाहिए, फिर जो भी रूल्स है वो भी उन्होंने फॉलो करने चाहिए। सो इतनी सारी जब सिमिलैरिटी होती है ना, तो उस ग्रुप में कुछ कोहेसिवनेस होता है, या फिर वी कैन से दैट कुछ होमोजेनिटी होती है। ओके, द पीपल आर टुगेदर। सो होमोजेनिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप। और अगर लोग सपोज अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से है, तो वो ग्रुप क्या होता है, इट इज लेस होमोजीनियस। ओके, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिसिमिलैरिटी होगी उस ग्रुप में। That is why the cohesiveness is weak in this kind of a group. Now second is size of a group. अगर size of group small होगा ना, तो उसमें एक informal relationship होगी amongst its members, and generally जो rural areas है वो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज द इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप। क्योंकि रूरल एरियाज में जो ग्रुप्स होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं। ओके, सो देयर इज इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप, पीपल नो ईच अदर वेरी वेल, so there is a intimate personal relationship with each other, and this is one of the factor which affects in the formation of group. So first one was the homogeneity, मतलब कुछ तो similar होना चाहिए। next is size of the group. अगर size of the group small है तो it's
वेरी गुड, क्योंकि उनमें फिर इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगी, लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में होंगे, पर्सनल रिलेशनशिप होगी, then they will have some intimate personal relationship with each other. Okay, people are free to share their ideas, their thoughts with each other, they express their feeling with each other when the group size is small. So जब group size small होगी तब ग्रुप का फॉर्मेशन होता है. ओके, और उस ग्रुप में इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है. नेक्स्ट वन इज द फिजिकल मोबिलिटी. The physical movement of an individual or several individuals belonging to a group to another location separates them from the group. मतलब क्या होता है, अगर फिजिकल मूवमेंट हुई है किसी इंडिविजुअल की एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो जब वो पहले लोकेशन में था ना, दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ अ सर्टेन ग्रुप. ओके, लेकिन अभी उनकी मूवमेंट हो चुकी है, दे हैव फिजिकली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इस ग्रुप के साथ उनका जो कनेक्शन है वो कम हो जाता है. Now they are almost, we can say that they are not part of this group. Now they have joined some another group. So क्या होता है ना, रेसिडेंस ट्रांसफर हो जाती है. दैट इज वाई इंडिविजुअल्स आर ड्रॉन फिजिकली एंड साइकोलॉजी अवे फ्रॉम द ग्रुप्स. जो भी ग्रुप में वो प्रीवियसली पार्टिसिपेट करते थे, अभी वो मूव हो गए हैं टू अनदर एरिया, तो इसलिए क्या हुआ, उनका जो कॉन्टैक्ट है वो पहले ग्रुप के साथ कम हो गया. सो नाउ दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप because they have moved from one location to the other. Okay, so the movement of individuals from one location to another will separate them from the previous group. जो उनका पुराना ग्रुप है ना, उससे उनका थोड़ा सा सेपरेशन हो जाएगा. So this is all about the physical mobility. Next one is the effectiveness of communication. ग्रुप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो ग्रुप में ग्रेटर कोहेसिवनेस होगी. कोहेसिवनेस मीन्स दी यूनिटी और कैन से दी सिमिलैरिटी, वो ज़्यादा होगी. इसलिए हमेशा कोई भी ग्रुप अगर फॉर्म करना है या फिर कोई भी ग्रुप अगर फॉर्म्ड है तो उसमें जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए. ओके, सो दैट आपका जो ग्रुप है इट विल लीड टू अ ग्रेटर कोहेसिवनेस इन द ग्रुप. नेक्स्ट इज द मोटिवेशन इन ग्रुप फॉर्मेशन. ओके, ग्रुप फॉर्म होने के लिए जो मोटिवेशन है हम उसके बारे में देखेंगे अभी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन मतलब क्या होता है ना, मोटिवेशन इज इनर स्टेट. हमारे मन की ये एक इनर स्टेट होती है जिसके वजह से हमें एक एनर्जी मिलती है, हम एक्टिवेट हो जाते हैं. ओके, एंड इट डायरेक्ट्स अस टुवर्ड्स अ गोल. हमारा जो बिहेवियर है, ओके, इट इज डायरेक्टेड टू अचीव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक गोल, या फिर हमारा कुछ टारगेट है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, हमें वो अचीव करना है, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके, इट इज नीड सेटिस्फाइंग एंड गोल्स सीकिंग बिहेवियर. ये सो मोटिवेशन क्या है? इट इज नीड सेटिस्फाइंग एंड गोल सीकिंग बिहेवियर. ये हमें हमारे गोल की तरफ जाने के लिए हमें हेल्प करेगा. इस बिहेवियर को हम कहते हैं मोटिवेशन. सो इट इज ऑलवेज इजी टू मोटिवेट अदर्स इन अ ग्रुप. जब हम एक ग्रुप में होते हैं ना तो एक दूसरे को मोटिवेट करना बहुत इजी हो जाता है. जब हम इंडिविजुअल है तब मोटिवेट करना शायद डिफिकल्ट हो, लेकिन जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, दैट टाइम मेंबर्स, दैट टाइम द पीपल इन दैट ग्रुप, दे हेल्प टू मोटिवेट ईच अदर. Now, because in groups, people think that they are doing things collectively and they take risk. क्या होता है, एक दूसरे को हम अच्छे से मोटिवेट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हर एक मेंबर के, ग्रुप के जो हर एक मेंबर है, उन्हें ऐसा लगता है कि सब लोग कलेक्टिवली तो वो काम कर रहे हैं ना, सब लोग कलेक्टिवली काम कर रहे हैं एंड सभी लोग रिस्क ले रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी ये रिस्क ले. सो इसलिए क्या होता है, जो मोटिवेशन है वो इजीली आ जाती है एंड ग्रुप में कोई भी टास्क हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. बाय टेकिंग दिस इन माइंड, अभी यही फैक्टर, ये जो मोटिवेशन का फैक्टर है ना, यही माइंड में लेके जो भी एक्सटेंशन के लोग हैं वो क्या करते हैं, दे फॉर्म सोशल ग्रुप्स. एक्सटेंशन के लोग ये मोटिवेशन का फैक्टर उनके माइंड में लेके कोई सोशल ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड दे कम्युनिकेट दिस विद दीज पीपल बिकॉज they know that in groups the communication will be more rewarding than individual person. एक्सटेंशन पीपल जो है उन्हें भी मालूम होता है कि अगर वो ग्रुप में कम्युनिकेशन करेंगे तो हमेशा इट विल बी मोर इफेक्टिव, इट विल बी मोर रिवॉर्डिंग देन द इंडिविजुअल पर्संस. अभी
किसी अगर हमें कोई ग्रुप ज्वाइन करना है तो मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है टू ज्वाइन अ ग्रुप. सो फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट इन ग्रुप. किसी को सपोज किसी को रीडिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है. ऐसे हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट इंटरेस्ट वी जॉइन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप. अगर कोई ऐसे मेंबर्स है उन सभी को सिंगिंग करना बहुत पसंद है और आपको भी सिंगिंग करना अच्छा लगता है, सो ऑब्वियसली यू विल गेट सम इंटरेस्ट इन जॉइनिंग दैट ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मिलता है. योर इंटरेस्ट इज सेम to the members of the uh, to the members which are present in that group. Now next is friends in group. अगर हमारा कोई फ्रेंड किसी ग्रुप में है तो we also join that group. बहुत इजी है ये. नेक्स्ट इज फ्रेंड रिलेशन. अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनका बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, दे टॉक टू पीपल वेरी नाइसली और आपको उनका वो रिलेशन अच्छा लगा तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन कल्चर. अगर हमारा कल्चर किसी और ग्रुप के मेंबर्स के कल्चर के साथ मैच हो तो हम उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. सो दीज आर सर्टेन मोटिवेशनल फैक्टर्स which help in the formation of a group. Now the next is role of social group in agricultural extension. अभी agriculture extension ये सब्जेक्ट में हमारे जो सोशल ग्रुप्स है इनका एक्चुअल काम क्या है, वाई वी शुड स्टडी अबाउट सोशल ग्रुप्स, हमें सोशल ग्रुप्स के बारे में क्यों मालूम होना चाहिए. So first one is it enables the extension agent to have face-to-face contact with a number of people at a time. एक ही टाइम पे जो extension agent है वो लोगों के साथ एक टाइम पे face to face contact कर सकते हैं. And extension agent can understand that what are the needs, what are the interests and what are the problems of the people in that rural society. इसलिए जो groups है वो बहुत important है. एक्सटेंशन एजेंट दे कैन हैव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और उन्हें पता चल सकता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड क्या है या फिर उनके प्रॉब्लम्स क्या है एंड विद और उसके बेसिस पे फिर एक्सटेंशन एजेंट कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. Next is people can get easily motivated to accept change due to group influence. क्या होता है ना, ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से लोग इजीली मोटिवेट हो जाते हैं और कोई चेंज एक्सेप्ट करते हैं. अगर आप किसी अकेले इंसान को आप अकेला जब होता है इंसान तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगा और चेंज एक्सेप्ट करने के लिए वो जल्दी मानेगा नहीं. लेकिन जब किसी ग्रुप का इन्फ्लुएंस है, अगर उसके ही ग्रुप के मेंबर्स उसे बोल रहे हैं दैट यस यू शुड adopt this innovation, it is very effective, आप ये वैरायटी अडॉप्ट कीजिए, अच्छी वैरायटी है, तो क्या होता है ना कि उसके ग्रुप के मेंबर्स ही उसे बता रहे हैं. सो ऑब्वियसली दैट पर्सन हैव मोर ट्रस्ट इन दोज ग्रुप मेंबर्स, सो इसलिए वो जल्दी वो चेंज एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है. सो पीपल गेट इजीली मोटिवेटेड टू एक्सेप्ट द चेंज ड्यू टू ग्रुप इन्फ्लुएंस. ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है ये. Now social groups they help in development and welfare of society. The next point is participation of groups in development activities through extension workers. जब भी ग्रुप्स होते हैं तो extension worker को भी ये बहुत easy हो जाता है कि लोगों से मिलना and then tell them to participate in the development activities. So लोग भी एक ग्रुप बना के नहीं तो फिर उनके जो भी ग्रुप्स हो गए वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. सो इससे क्या होता है, उस रूरल एरिया की ही डेवलपमेंट होगी. Now next is in groups people can be enhanced and members of groups can be involved for in-depth discussions. अगर कुछ in-depth discussions करने होंगे, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हमें अबाउट दी रूरल एरिया, नहीं तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो की जाती है, लोगों का इंटरेस्ट किस में है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, तो जब किसी ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होगा तो वो हमें कैसा एक इन डेप्थ डिस्कशन हम कर सकते हैं. सो एक्सटेंशन वर्कर कैन नो मोर अबाउट दैट रूरल एरिया. So yes, this is all for today's lecture and now let us discuss a few important multiple choice questions. So first one is on the basis of interaction the group is divided into. Basis of interaction पे group हमने कैसे divide किया है, primary and secondary group.
नेक्स्ट इज वी फीलिंग इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ग्रुप? ऑब्वियसली प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में एक वी फीलिंग होती है। नेक्स्ट इज आई इफ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो देन प्लीज चेक इट आउट, बिकॉज ये जो भी क्वेश्चंस है तो वो प्रीवियस वीडियो के बेसिस पे भी है, एज वेल एज दे आर बेस्ड ऑन दिस वीडियो ऑल्सो। हमने देखा है दैट प्राइमरी ग्रुप मतलब उसका बेस्ट एग्जांपल इज आवर फैमिली। ओके, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, मेंबर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, रिलेशनशिप इज इनफॉर्मल इन नेचर। सो ये सारे पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, so please do watch that video also. So groups in which members have definite roles and is governed with certain rules and regulations. ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ डेफिनेट रोल्स हो गए इंडिविजुअल्स के लिए एंड सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, उससे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ग्रुप। ओके, और ये जो फॉर्मल ग्रुप है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का के बारे में बात करते हैं तब आपको डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये याद में आना चाहिए। जब हम क्लासिफिकेशन डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे के बेसिस पे करते हैं तो फर्स्ट वर्ड इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बेसिस पे क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और लोगों का एक डेफिनेट रोल प्ले करना होता है। whereas जब हम इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में बात करते हैं दैट टाइम इट इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू द फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। Now next is dash is the most elementary type of temporary group. Okay, temporary group में सबसे elementary type of group कौन सा? मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था that elementary type means basic type of group. So that is the crowd. Crowd is the most elementary type of group. Now next is crowd in positive action and motivated by anger or other emotional aspects. ऐसा crowd जिसमें कोई emotional aspect है और it is motivated by anger, नहीं तो कुछ positive action से motivated है, तो हम इसे क्या कहते हैं? Mob. नेक्स्ट इज ग्रुप्स क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। कुछ स्पेशल इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं उन्हें हम कहते हैं स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर्स इन दिस टाइप मेंबरशिप इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कंपल्सरी। ये हमने ये भी शायद लास्ट लेक्चर में ही देखा है ये हमने कि मेंबरशिप जो है इस टाइप के ग्रुप में कंपल्सरी होती है, दैट इज नॉन वॉलंटरी ग्रुप। नॉन वॉलंटरी ग्रुप में क्या होता है? जो मेंबरशिप है वो कंपल्सरी होती है, यू हैव नो चॉइस। Next is the group characterized by expression like we belong, we feeling, we believe and we act. ये सारे expression किस type of group में होते हैं? मतलब we belong, we feeling, we believe, ये सब होता है in group में। Next is on the basis of type and quality of relationship, group is divided into टाइप एंड क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे ग्रुप्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज गिसेलशाफ्ट ग्रुप एंड जेमाइनशाफ्ट ग्रुप। So next question, family is an example of dash group. Family is an example of primary group. Dash group has definite, मैंने अभी बताया कुछ प्रोसीजर्स होती है, फंक्शनिंग होती है, वो होता है फॉर्मल ग्रुप में। The group assemble for short period. जो भी ग्रुप शॉर्ट पीरियड के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, असेंबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेम्पररी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ग्रुप्स आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे कौन से ग्रुप है जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं? दैट इज वर्टिकल ग्रुप। यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं और वो अलग अलग उनका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट सेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ इनकम मिलता है। ओके, ऑलमोस्ट सेम पोजीशन होगी उन लोगों की। सो ऐसा जो ग्रुप है दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रुप। और ये क्या है? डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी इन ग्रुप्स में, तो दैट इज वर्टिकल ग्रुप। सो नाउ ये जो एग्जाम्स के लिए मोस्टली आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एंड दे विल आस्क यू दैट इट इज वो कौन सा ग्रुप है। ओके, दैट एग्जाम्पल इज ऑफ विच टाइप ऑफ ग्रुप, और आपको ग्रुप्स में ऑप्शन दिए जाएंगे, नहीं तो आपको ग्रुप पूछा जाएगा और आपको एग्जाम्पल्स बताए, आपको बोलेगी कि आप एग्जाम्पल बताओ इन ग्रुप्स के। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। सो प्लीज रिमेम्बर फॉर्मल ग्रुप्स के एग्जाम्पल, फॉर्मल ग्रुप में जो एग्जाम्पल है वो है कॉलेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्मी। इनफॉर्मल ग्रुप में फैमिली है, गॉसिप ग्रुप है, फ्रेंड्स है। प्राइमरी ग्रुप का जो बेसिक एग्जाम्पल है दैट इज फैमिली। जो वॉलंटरी ग्रुप है उसमें गॉसिप ग्रुप है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन या फिर
लाइब्रेरी। वॉलंटरी ग्रुप मतलब क्या, यहाँ पे मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी नहीं होती है। अगर आपको पार्ट नहीं होना है उस ग्रुप का, देन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, और आपको उन ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की भी जरूरत नहीं होती है। आपकी विल एंड विश के बेसिस पे ये ग्रुप होता है, दैट इज दी वॉलंटरी ग्रुप। अभी जो नॉन वॉलंटरी ग्रुप है, यहाँ पे आपका जो मेंबरशिप है इट इज कंपलसरी। सो ऐसा जो एग्जांपल्स है इसमें, दैट इज दी कास्ट ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, नेशनल ग्रुप, सेक्स ग्रुप। देन स्मॉल ग्रुप में फैमिली है, स्पोर्ट्स क्लब है। बिग ग्रुप में यूनिवर्सिटी नहीं तो आर्मी का एग्जाम्पल है। परमानेंट ग्रुप में फैमिली, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। टेम्पररी ग्रुप में यू हैव क्राउड, ऑडियंस, मॉब, पब्लिक, ये हमने देखा है ऑलरेडी। ओके, एंड हर्ड, हर्ड भी है इस टाइप ऑफ ग्रुप में। देन नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल ग्रुप, इसमें फार्मर्स, ब्लैक्समिथ, कारपेंटर्स। वर्टिकल ग्रुप्स में पॉलिटिकल पार्टीज। देन जेमाइन शाफ्ट ग्रुप में जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। एंड गिसल शाफ्ट ग्रुप में होलसेलर्स एंड एसोसिएशन। तो इतना ये सब एग्जांपल्स आप याद रखो फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइप ऑफ अ ग्रुप। ओके, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एक्चुअली। So yes, this is all for today and thank you so much for watching this video. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।